Hello everyone. Today we are going to discuss about pair of linear equations in two variables. That means chapter 3, exercise 3.4. Okay? So pair of linear equation in two variables. Okay, how to solve a pair of linear equation in two variables. Solving any equation means to find out the value of the variable. We have already learned, isn't it? And how to solve if two pairs or a pair of linear equation is given to you to find out their solution. That means we need to find out the value of variable x and y, and whatever it may be, x or y or a or b, whatever it may be in the equation, which will satisfy both the equations. Okay, so in this exercise particularly we are going to discuss about how to solve pair of linear equations by different methods. Today we are going to discuss about a new method, that is elimination method. Okay, so under exercise 3.4 some questions are given. What are the questions? If you follow the textbook, you will see that solve the pair of linear equations by elimination method and substitution method. Okay, इस एक्सरसाइज के अंदर हमें दिया गया है कि we need to solve the given pair of equations by two different methods. One is elimination method and the other is substitution method. Okay, substitution method we have already learned in exercise 3.3. Under 3.4 we are going to learn about elimination, even though I'll show one question how to solve it by substitution as well as elimination. So the first question is this: solve x plus y is equals to 5 and 2x minus 3y is equals to 4. Now we need to solve these equations by two different methods. One is substitution method and the other is elimination method. First of all, let us begin to solve it by substitution method. See, I have written here by substitution method. Okay, we will take the first equation. What is the first equation we have? We have x plus y is equals to 5. This is the first equation. Okay, now what to do? Let us keep x this side and let us transfer y the other side. If we transfer y the other side, it is positive y, and if it is transferred the other side, it will become negative y. That means we obtain x is equals to 5 minus y. Let us mark it as equation number 1. Okay, now what to do? करना क्या है कि x का जो ये नया वैल्यू मिला है हमें, x is equals to y minus 5, the new value of x, इस वैल्यू को हमें इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करने हैं. इन द प्लेस ऑफ x we are going to substitute the value of x as 5 minus y. That means the first question, the second equation we will name it as first. क्या है वो इक्वेशन को हम, वो तो क्वेश्चन था तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं. तो twice x minus 3y is equals to 4. That was the equation. Let us name it as equation number 2. Now what is next? What to do? We are going to substitute the value of x in equation number 2. That means यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 पे जहाँ पे x है, x अभी हम नहीं लिखेंगे नेक्स्ट टाइम. इस जगह में x का जो नया वैल्यू मिला है हमें 5 minus y, we are going to substitute 5 minus y here in this place of x. So how to write substituting the value of x? आप लिख भी सकते हो ऐसे याद करने के लिए, substituting the value of x in equation number 2. Substituting the value of x in equation number 2. यहाँ पे substitute करना है इस value को. तो करें क्या? At the beginning we have 2 लिखें, x is there, but we are not going to write x
the value of x is found to be 5 minus y. We are going to substitute x by 5 minus y. Is that okay? Then minus, what is there? Minus 3y is there. So minus 3y is equals to, what is there? There is a 4. So we have obtained this one. We have not written x value here. In place of x, we have written 5 minus y. Clear? This is called a substitution process. Now what to do? Let us solve it. जैसे ही हमने यहाँ पे x का वैल्यू डाला, या इस इक्वेशन से x गायब हो गया, x is eliminated. Look at here, and what is, if we solve it, you will get the value of y here. So 2 times 5 is 10 minus 2 times y is 2y, then minus 3y is equals to 4. Got it? Now this 10, positive 10, it is positive. देखो 10 से पहले क्या साइन है, 10 के आगे क्या साइन है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा. अगर कुछ नहीं है तो देयर इज ऑलवेज प्लस. और ये जो निगेटिव साइन है, दिस डजंट बिलोंग टू दिस 10, ये एक्चुअल में इस 2 का साइन है. ठीक है, इस 2 का साइन है निगेटिव, और ये वाला निगेटिव 3 का साइन है. 10 का साइन कहाँ पे है? 10 से पहले है. 10 से पहले क्या है? यहाँ पे कुछ भी तो नहीं है. कुछ भी तो नहीं है मतलब यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव. इफ देयर इज नथिंग, देयर विल बी पॉजिटिव. वी विल कंसिडर इट एज पॉजिटिव. तो पॉजिटिव 10 को जो है हम उस ओर शिफ्ट करेंगे. जैसे ही ये इक्वल साइन की अदर साइड चला जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव. ठीक है, मतलब यह है कि दोनों साइड हमने -10 कर दिया, ऐसा होगा. तो इसको हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो नेगेटिव 10 बन जाएगा. यहाँ पे क्या है देखो ध्यान से, ये है -2 टाइम्स y और -3 टाइम्स y. 2 टाइम्स y एंड -3 टाइम्स y टुगेदर देयर विल बी 5 टाइम्स y. ठीक है, दिस इज 4 ऑलरेडी एंड दिस 10 इज shifted that side, it will become -10. Then we have now -5y is equals to, this will be, if you solve it, 4 से 10 माइनस हो गया, दोनों ऑपोजिट साइन वाले हैं तो नेगेटिव होगा. बड़ा वाला क्या, बड़े वाला जो नंबर है जो 10 है, 10 से पहले माइनस है तो बिगर नंबर इज इन नेगेटिव. 10 minus 4 is 6. बोथ साइड्स नेगेटिव हैं तो नेगेटिव हम कैंसिल कर सकते हैं. और यहाँ पे y को अगर y और 5 दे आर मल्टीप्लाइड विथ विच अदर, राइट. y और 5 दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रखे हैं. इनको इधर को शिफ्ट करोगे 5 को तो y रह जाएगा, 5 विल गो एंड इट विल डिवाइड. सो y का वैल्यू जो है 6 आउट ऑफ 5, 6/5 हमें y का वैल्यू मिल गया. नाउ आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y, वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 में y का जगह में हम अगर y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो x का जो वैल्यू है सोल्व करने पर निकल आएगा. ठीक है, तो करते हैं. पुटिंग y इक्वल्स टू क्या निकला था? 6/5 इन इक्वेशन नंबर 1. ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 1 को, x इक्वल्स टू 5 minus y. ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं याद करने के लिए स्टेप्स को. पुटिंग y इक्वल्स टू 6/5 इन कौन से इक्वेशन में? हाँ, किसी भी एक इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, पर अगर 1 में करोगे तो ये ज़्यादा आसान रहेगा. तो x इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? व्हाट इज x? x इज इक्वल्स टू 5 minus y. So let us substitute the value of y here. What was the value of y? Y was found as 6/5. So it will be 5 minus 6/5. Let us take the LCM. बहुत आसान सा तरीका है, इसको एलसीएम लेते रहने की ज़रूरत नहीं है. आप एक काम करो, नीचे इसका डिनोमिनेटर 5 है तो 5 बिठा दो. 5 टाइम्स क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करो. 5 टाइम्स 25, 25 से 6 माइनस करो. 5 टाइम्स 25, 25 से 6 माइनस करो. फिर से बता दे रहा हूँ, 5 टाइम्स 25, 25 से 6 माइनस करो. यहाँ पे माइनस है तो माइनस करना है. अगर प्लस होता तो 5 टाइम्स 25, 25 से 6 प्लस करते. ठीक है, 25 माइनस 6 इट इज 19. तो इस तरीके से हमें x का वैल्यू जो है वो 19/5 भी मिल गया. मतलब क्या है कि देयरफॉर x इक्वल्स टू हमें मिल गया 19/5 और y इक्वल्स टू मिल गया हमें
6/5। आप ऐसे इसको लिख सकते हो या फिर आप ऑर्डर्ड पेयर के तौर पे भी लिख सकते हो। द सॉल्यूशंस आर, और ऐसे भी लिख सकते हो, और द सॉल्यूशंस आर ऐसे लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, दैट इज 19/5, 6/5। ये भी एक तरीका है सॉल्यूशन लिखने का, ठीक है। So in this way we have solved given pair of linear equation by one method, that is substitution method। अभी इसी क्वेश्चन को जो है हमें एलिमिनेशन मेथड में भी सोल्व करना है। ये रहा, हमने लिखा है बाय एलिमिनेशन मेथड, और जो पहला वाला इक्वेशन था हमारे पास x + y = 5, तो इसको हमने बना दिया इक्वेशन नंबर 1। दिस इज मेरी इक्वेशन नंबर 1, and this equation, that is twice x minus 3y is equals to 4, it is my equation number 2. Yes, now let us understand the term elimination। कैसे इसको एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेशन मतलब हम इसको एलिमिनेट करेंगे या फिर x और x दोनों ही इक्वेशन से, फ्रॉम बोथ द इक्वेशंस either we have to remove x or from both the equations we have to remove y। If we can remove either x or y from both the equations, then it will be said that elimination, y is eliminated। Or if x is removed from both the sides, then we will say that x is eliminated। But how can we eliminate x or y? Okay, दोनों को remove नहीं करना है। We need not to remove both the variables। We have to remove either only x from both the equations or only y from both the equations। If we do so, then it will be known as elimination, method of elimination। It comes under the method of elimination। But how to do that? कैसे करें? तो द टास्क इज, हमें सबसे पहले देखना है कि x के पहले अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो, आप किसी भी इक्वेशन, कोई भी इन दोनों इक्वेशन में से यू कैन रिमूव either x और यू कैन रिमूव y फ्रॉम बोथ द इक्वेशंस। ओके, दोनों को एक साथ एलिमिनेट नहीं करना है और नहीं कर पाओगे, पर ओनली x को या फिर ओनली y को एलिमिनेट कर सकोगे। तो देखना है सबसे पहले कि आप किसको एलिमिनेट करोगे, कौन सा एलिमिनेट करने के लिए आपको इजी होगा, ज़्यादा आसान होगा और कम समय लगेगा। तो कोई भी यहाँ पे, तो कोई भी एलिमिनेट करो, आप x को एलिमिनेट करो या फिर y को एलिमिनेट करो, सेम ही है, यहाँ पे ईजी है बहुत ही। चलो मैं y को एलिमिनेट कर देता हूँ। कैसे करूँ अभी y को एलिमिनेट? तो सबसे पहले ध्यान रहे, अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हो तो y के आगे कोएफिशिएंट जो होगा दोनों ही इक्वेशन में सेम होने हैं, बराबर होने हैं। इफ यू विश टू एलिमिनेट y, देन रिमेंबर द कोएफिशिएंट ऑफ y in both the equations, coefficient of y in both the equations must be same। Okay, अगर नहीं है then you have to make them same। Okay, the same in the case of elimination of x also। That means if you wish to eliminate x from both the equations, then you have to make the coefficient of x same in both the equations। Look at, there is, what is the coefficient of x in the second equation? That is 2। But what is the coefficient of x in the first equation? That is 1। Similarly, the coefficient of y in the first equation is -3, or you can say 3 only। साइन को थोड़े समय के लिए हम इग्नोर करेंगे, यहाँ पे क्या है, 3 है। और व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y इन द फर्स्ट इक्वेशन? दैट इज 1। सो आर दे सेम? ऑफ कोर्स दे आर नॉट सेम। देन व्हाट टू डू? वी हैव टू मेक देम सेम। हाउ टू डू? वी हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 विथ 3। अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हो तो y के आगे क्या कोएफिशिएंट है इक्वेशन 2 में? दैट इज 3। ओके, लेट अस देन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंटायरली विथ 3। इफ यू डू सो, अगर 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये रहा 5 भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। होने के बाद आपको एक नया इक्वेशन मिलेगा, जैसे कि हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड विथ 3। आपको क्या मिलता है देखते हैं। x को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम्स x, प्लस है यहाँ पे प्लस y को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम्स y, और यहाँ पे 5 है, 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करो। एंटायरली दिस इक्वेशन इज टू बी मल्टीप्लाइड विथ 3। ये हो जाएगा 15। ठीक है, ये जब नया इक्वेशन बन गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बना दो।
इक्वेशन 3 बना दो इसको, ठीक है, नया इक्वेशन बना दो। अभी आप सीधे सीधे इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर 3 से 2 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इक्वेशन 2 से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया है यहाँ पे, तो क्या होगा देखो, इसके नीचे वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा, इसके नीचे वाला साइन भी अल्टर हो जाएगा, इसके नीचे वाला साइन भी अल्टर हो जाएगा, कुछ भी है इसका अल्टर हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये नेगेटिव हो गया, अभी देखो इनको प्लस करो आप, प्लस मतलब ये क्या करना है, आप सोल्व करो इसको, -3x है, ये +2x है, तो सोल्व करोगे तो क्या होगा, -x होगा। ये आप माइनस नहीं करोगे, आप प्लस करोगे। क्यों प्लस करोगे, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव है और यहाँ पे ये पॉजिटिव है, और अगर आप इनको प्लस करते हो तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली y जो है हमारा यहाँ पे वो एलिमिनेट हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो हम इसको माइनस नहीं करने वाले। जैसे कि आप लोगों ने देखा, जैसे ही हमने माइनस किया तो साइन यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ये भी ऊपर का नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव दोनों ही अगर नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे तो 3 + 3 = 6 -6y आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा y एलिमिनेट नहीं हो पाया। तो अगर इसको हम अगर प्लस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन जो है नीचे का ये पॉजिटिव ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आएगा और यहाँ पे भी कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो होगा क्या, फाइनली 3 टाइम्स x एंड 2 टाइम्स x दोनों मिला करके यहाँ पे 5 टाइम्स x हो जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव 3 टाइम्स y एंड नेगेटिव 3 टाइम्स y दोनों को मिला करके ये कट हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे y गायब हो गया, y एलिमिनेट हो गया, और ये 15 + 4 = क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। अभी 5 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रखे हैं। 5 को अगर आप उस ओर शिफ्ट करते हो तो x = 19 out of 5, 19 out of 5, ठीक है। तो 19/5 पहले क्वेश्चन में भी हमने इसको सोल्व किया था और x का वैल्यू 19/5 ही आया था। पर यहाँ पे जो देखो आप, ये बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही शॉर्ट मेथड में आपको 19/5 मिल रहे हैं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग, हाउ टू एलिमिनेट, ओके। क्या करना है, स्टेप्स को समझना बहुत ही जरूरी है। तो उसके बाद x का वैल्यू तो हमें मिल ही चुका है। x का वैल्यू जो है, ऊपर जो इक्वेशंस 2 हमें मिले थे, इनमें से जो सिंपल सा आपको दिखाई देता है उसी इक्वेशन में आप x का वैल्यू लिखो और इसको सोल्व कर दो तो y का वैल्यू निकल आएगा अपने आप। तो लेट अस डू सो। पुटिंग x = 19/5 इन 1 में मैंने बता दिया। 1 क्या था हमारे पास, यस 1 था हमारे पास, x + y = 5, x + y = 5. So let us substitute the value of x here and let us solve it to get the value of y. तो x का वैल्यू हमारे पास है 19/5, हमने x नहीं लिखा, इन प्लेस ऑफ x वी आर राइटिंग 19/5 plus y is equals to 5. Is that okay? Now 19/5, if we shift 19/5 the other side, then it will be y is equals to 5 minus 19/5. Is that clear? Now 5 minus 19/5 will be, मैंने इससे पहले भी बताया था, तो शॉर्टकट मेथड क्या था, नीचे 5 टाइम्स 25 से 19 को माइनस करो, 25 से 19 को माइनस करो, 5 टाइम्स 25 से 19 को माइनस करो, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ, रिपीटिंग वंस अगेन, 5 टाइम्स 25 माइनस 19, इट विल गिव यू 6, सो y इज इक्वल्स टू 6/5। तो ये हो गया y का वैल्यू, x का वैल्यू 19/5, y का वैल्यू 6/5। Therefore the solutions are in the form of ordered, where if you write the 19/5 and 6/5. Clear? Then similar way, let us solve the next question. If you go to the exercise 3.4, question number 1 and 2, this question is given
सो यू कैन गो थ्रू। आप सभी को किताब यू जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट बुक, किताब देखो, किताब के एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 का जो 2 है ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व करना है बाय बोथ द मेथड्स, एलिमिनेशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने बताया था आपको इन द प्रीवियस सोल्यूशन दैट आई विल सोल्व ओनली वन टाइम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, रेस्ट यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो यू कैन कमेंट or you can mail me also. So let us now solve this by elimination method. How to solve it by elimination method? We will solve this by elimination method only. Substitution method you are asked to try. If you get any problem, you can mail me, you can message me. Okay. This is the first question, first equation. Let us name it as question number 1, and the second question let us name it as question number 2. हमने सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐसे नाम या फिर नंबर लगा दिए। अभी ध्यान देना है कि किसको एलिमिनेट करोगे आप। What is the coefficient of x in the first equation? It is 3. In the second equation what is the coefficient? That is 2. ये 3 है और ये 2 है, तो ना तो 2 को आप 3 बना सकते हो, ना तो 3 को आप 2 बना सकते हो। तो ये जो है मल्टीप्लाई, अगर आप x का कोएफिशिएंट अगर आप सेम बनाना चाहते हो तो आपको सेकेंड इक्वेशन को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और फर्स्ट इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम देखेंगे अगर इससे भी कोई आसान तरीका है तो इसके लिए हम y का कोएफिशिएंट देख लेते हैं। पहले y का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 4, देयर इज 4 एंड देयर इज 2। ओके, दैट 2 can be made 4 by multiplying 2. Okay, so only in equation number 2 if you multiply 2, अगर इक्वेशन 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 4, ये 4 बन जाएगा, और जैसे ही ये 4 बन जाएगा दोनों का कोएफिशिएंट 4 4 सेम हो जाएगा। दैट मीन्स only one time multiplying equation 2 by 4 we can eliminate the next step. So step number 1, what to do? We have to make the coefficient of y same in both the equation. That will be the simplest way. So let us multiply. इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। इक्वेशन ये 2 हो गया, ये ज्वाइन हो गया पूरा। हाँ, इक्वेशन 2, इसको हम क्या से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? Why we are going to multiply equation 2 by 2? Yes, we are going to multiply equation 2 by 2 to make it 4. Coefficient, to make the coefficient of y 4. What will happen then? Yes, in the first equation we have 4 times y. If we multiply second equation by 4, then it will also become minus 4 times y. 4 times y, 4 times y, दोनों कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा और एलिमिनेशन जो है बहुत ही इजीली हो जाएगा। So let's do so. इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस एंटायर इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड विद 2। सिर्फ 2 को नहीं करना है, ये पूरा का पूरा इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो ये बन जाएगा 4x माइनस ये बन जाएगा 4y एंड दिस विल बिकम 4, a new equation. So let us name this new equation as equation number 3. Now in equation 1 and equation 3, if you compare these two equations carefully, then you will see there is 4y and there is minus 4y. Okay, this can be eliminated. अब इस equation number 2 को ignore करो। equation 2 के साथ हमारा कोई भी रिश्ता नाता नहीं है, इसको छोड़ो। You just ignore equation number 2 now, for now. Equation 1 है हमारे पास and 2 is multiplied with 2 and finally we get a new equation, that is equation number 3. Now we are going to solve these two equations, equation 1 and equation 3. How to do? Let us add equation 1 and equation 3. equation 1 को और equation 3 को हम ऐड करने वाले हैं। कब ऐड करेंगे? ध्यान रहे, सबसे पहले हमें कोएफिशिएंट देखना था। कोएफिशिएंट अगर सेम नहीं है तो सेम बनाना था, जो कि हमने यहाँ पे बना लिया है। कोएफिशिएंट दोनों ही इक्वेशन में y का जो कोएफिशिएंट है वो सेम निकल आया। अभी हमें साइन देखना है, अगर इसमें आगे प्लस है और इसमें आगे माइनस है, ऑपोजिट साइन है। अगर ऑपोजिट साइन है तो हम प्लस करेंगे, और अगर सेम साइन है, मान लो इसमें पॉजिटिव और इसमें भी पॉजिटिव है होता, तो हम इसको माइनस करते।
या फिर मान लो इसमें निगेटिव और इसमें भी निगेटिव होता, तो दोनों में अगर निगेटिव होता मतलब सेम साइन होता, एक जैसा साइन होता, तो हम इसको माइनस करते, सब्ट्रैक्ट करते। रिमेंबर, ऑपोजिट साइन यू हैव टू परफॉर्म एडिशन, इफ देर आर सेम साइन देन यू हैव टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन। सेम साइन सब्ट्रैक्शन, ऑपोजिट साइन एडिशन। क्लियर? बस इतनी बात को याद रख लेना। अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को वी आर गोइंग टू ऐड दिस टू इक्वेशंस। कैसे ऐड करें अभी? चलो ठीक है, इक्वेशन सबसे पहले इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 हमने यहाँ पे बना लिया है। कैसे ऐड करें? इक्वेशन 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है इसको इक्वेशन 2 के भी लेफ्ट हैंड साइड पार्ट के साथ हम ऐड करने वाले हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट हम लिख लेते हैं थ्राइस एक्स प्लस 4y, ये हो गया इसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। इसका भी लेफ्ट हैंड साइड पार्ट क्या है, प्लस किया है हमने किसका साथ, इसके लेफ्ट हैंड साइड पार्ट के साथ 4x माइनस 4y। ठीक है, अब राइट हैंड साइड वाला, इसका राइट हैंड साइड क्या है, 10 है तो लिखो 10। इसका राइट हैंड साइड क्या है, 4 है तो लिखो 4, और क्या करना है, प्लस करना है तो करो प्लस। ठीक है, लेट अस रिमूव द ब्रैकेट। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, प्लस है, तो ब्रैकेट को रिमूव करने के बाद भी कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, जैसा है वैसा ही रह जाएगा। सो थ्राइस एक्स प्लस 4y प्लस 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, दिस इज 14। इज इट ओके? नाउ 4y एंड माइनस 4y, एक पॉजिटिव में है दूसरा नेगेटिव में है, तो ये कैंसिल हो गया। हालांकि आपको कैंसिल ऐसे कट करके नहीं दिखाना है, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने कट किया है। नहीं भी करोगे तो ये कैंसिल ही है, क्योंकि 4y से 4y माइनस होता है तो 0 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स x, आप इसको ऐसे पढ़ना है 3 टाइम्स x, और यहाँ पे 4 टाइम्स x, दोनों ऐड है, प्लस है। 3 टाइम्स x एंड 4 टाइम्स x, कितने टाइम्स x हो गए, 7 टाइम्स x हो गए। और यहाँ पे क्या है, 14 है, तो 7 और x जो है एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रखे हैं। 7 को अगर आप उस ओर शिफ्ट करते हो तो ये डिवाइड बन जाएगा, सो x विल बी 14/7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 14/7 मतलब 2। तो x का वैल्यू जो है हमारे पास 2 निकल आया है। अभी x का जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर, किसी भी एक सिंपल सा इक्वेशन जो भी आप देखते हो यहाँ पे, जो भी आपको लगता है कि सिंपल है, उसी इक्वेशन में आप x का वैल्यू डालो और सोल्व करो। तो मेरे ख्याल से इक्वेशन नंबर 2 सबसे आसान दिखाई देता है। तो इक्वेशन 2 में हम x का जो वैल्यू अभी जो निकला है, जो कि 2 निकला है, इसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे और इसको हम सोल्व कर देंगे तो y का वैल्यू निकल आएगा। सो सब्सटीट्यूटिंग या फिर पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। ध्यान रहे इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। तो इसमें हम x का वैल्यू डालेंगे। सो पुटिंग, आप यहाँ पे इक्वेशन 2 इम्प्लाई भी लिख सकते हो, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। क्या था हमारे पास इक्वेशन 2, यस 2x, x नहीं लिखना है, 2x, x का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 इंटू एक्स का जगह में हम 2 लिखे हैं, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, तो 2 दूनी 4, 2 2 4, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। इस 4 को आप उस ओर शिफ्ट करो तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 4 है, इसके आगे पॉजिटिव साइन है, कुछ भी नहीं है तो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव साइन जो है पॉजिटिव 4 है, पॉजिटिव 4 को उस ओर शिफ्ट करोगे तो नेगेटिव 4 बन जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4। तो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, बाकी का जो पार्ट है यहाँ पे मैंने कर दिया है। ये माइनस 2 टाइम्स y इज इक्वल्स टू माइनस 2, ये माइनस दोनों ओर से कैंसिल हो गया। अभी y इज इक्वल्स टू, y और 2 मल्टीप्लाई हो रखे हैं, 2 को इस ओर शिफ्ट करोगे 2/2 दैट इज 1। तो x का वैल्यू आपके पास 2 है और y का वैल्यू आपके पास 1 है। ठीक है, सो इन दिस वे दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सोल्व्ड बाय एलिमिनेशन मेथड। तो x और y का वैल्यू आपको मिल गए हैं। इसके बाद आपको लिखना है द सॉल्यूशंस आर x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1। आफ्टर दिस लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन। पहला इक्वेशन है थ्राइस x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो सबसे पहले करने वाले हैं हम इस माइनस 4 को उस ओर शिफ्ट करने वाले हैं। तो थ्राइस x
-5y, नेगेटिव 4 को इस ओर अगर शिफ्ट करोगे तो ये पॉजिटिव 4 बन जाएगा, और इसी तरह हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। ठीक है, दूसरा जो इक्वेशन है वो ये रहा। तो इसमें जो हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे 9x है और यहाँ पे जो है इक्वल साइन के उस ओर है 2y, तो 2 टाइम्स y को हम इस ओर शिफ्ट करने वाले हैं। तो 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू, ये 7 रह गया यहाँ पे, पॉजिटिव 7, तो इसका इक्वेशन नंबर हम इसको बनाने वाले हैं 2। अभी देखते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 में ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, इसमें क्या क्या है। x से पहले x का आगे का जो है कोएफिशिएंट जो है वो 3 रहा, और यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है वो है 9, इसमें 3 है, इसमें 9 है, और y का कोएफिशिएंट यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 2, दैट मीन्स -5 और -2। तो 5 और 2 को हम तो इक्वल नहीं बना सकते, बना भी सकते हैं पर ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा कंपेयर टू दिस वन। We can make 3 very easily 9 by multiplying simply with 3, isn't it? तो इसको इक्वेशन नंबर 1 को एंटायरली, इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 9 बन जाएगा, ये वाला 15 बन जाएगा और ये वाला 12 बन जाएगा। ये जैसे ही 9 बन जाएगा इसका कोएफिशिएंट, इसका भी कोएफिशिएंट 9 है, तो हमें सेम कोएफिशिएंट मिल जाएंगे। तो हमारा टास्क यहीं से शुरू हम करें। इक्वेशन 1 को आपको सबसे पहले यू हैव टू ऑब्जर्व द 2 क्वेश्चंस, ओके। किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करने पर आपका जो है वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो है सेम निकलता है, तो इसको पहले ही ऑब्जर्व कर लेना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है बाय 3। सो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड विद 3, व्हाट विल यू गेट? यस, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9x माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15y, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12। ये नया एक इक्वेशन बन गया आपके पास, इक्वेशन नंबर 3 है। तो आप अभी करना क्या है, आपको इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सोल्व करना है। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आपको सोल्व करना है। तो 2 के पास x का कोएफिशिएंट 9 है, 3 के पास भी x का कोएफिशिएंट 9 है, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, इसको हम एलिमिनेट कर पाएंगे। पर करेंगे क्या, कैसे करेंगे? इसका साइन क्या है आगे? पॉजिटिव, इसका भी साइन क्या है आगे? पॉजिटिव, दोनों सेम साइन है। जब सेम साइन रहता है तो क्या करना था? यस, हमने बताया था अगर सेम साइन है तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, अगर अलग अलग साइन होता है तो यू हैव टू ऐड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसको किससे? इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करो, या फिर 2 से 3 को करो, बात तो एक ही है। लेट अस सब्ट्रैक्ट। 3 से 2 को करें, इक्वेशन 3 से 2 को करें सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, कैसे करोगे? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2. Left hand side of equation 2 is to be subtracted by or from left hand